Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Study with HA, and today I'm here with a new topic before you people. Is a novel which was written by Eugene O'Neill, and the name of the novel is A Long Day's Journey into Night. आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है, जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो एक नावल है अ लॉन्ग डेज जर्नी इनटू लाइट, विच वाज रिटन बाय यूजीन ओनील. Before starting the main video, I would like to tell you that this piece of writing of our writer is semi-autobiographical work of tragedy which is depicting the author's life. What does it mean? It means that ये जो हमारी स्टोरी है, ये जो नावल है, रियल लाइफ ऑफ ऑथर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है. जैसे इसमें करेक्टर्स पोर्ट्रे किए गए हैं, जो हमारे यूजीन ओनील हैं, उनकी रियल लाइफ भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह की थी. किस तरह से थी? लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टोरी. This novel is actually, how many acts are there in this novel? There are only 4 acts in this play. Then moving towards the next, and next there is character. How many characters are lying in the story? There are totally 5 characters in the story. 4 of them are a major one and one of them is almost minor one. Number 1 is the James Tyrone, Mary Tyrone, Edmund Tyrone and Jamie Tyrone, and number 5 is Kathleen. Kathleen is actually maid, and upper 4 one are the major character of our story. And what are the main key facts of their story, how they are connected with each other, what are their relation with each other. Now we are going to look at them. The first character before you people is James Tyrone, who is 65 years old man, and he is very well settled, and he is a stage actor, but he spent his early life very poor, and his voice and dressing is also superb, and he is some handsome kind of person, and but he was addicted toward alcohol. That's why he is called Catholic, and he is main important thing, he is suffering from Oedipus complex. What is Oedipus complex? Guys, you know better what is Oedipus complex. It is such a stage in which opposite genders attract each other, and the similar genders repel each other. So in this story we will also observe this phenomena in James Tyrone, and also in many other characters of our story, that how they are suffering from Oedipus complex. Next character is Mary Cavan, who is 54 years old lady. She is very smart and gorgeous, good looking, and she wanted to become a nun or pianist in her early life. She is very extremely nervous, but she is also addicted towards morphine. Her personality is very splitted, distorted personality है उसकी, and seeks solitude and not much linked with the religion. Mean to say कि religion के साथ अब जो है उसका ज़्यादा link नहीं है, and she is also suffering from Electra complex. Before this character we have learnt about James Tyrone, who was suffering from Oedipus complex, and now the female character who is suffering from Electra complex. What is Electra complex? Electra complex is, गाइस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ये भी एक बेसिकली स्टेज होती है, और ये भी इडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है, कि जब जो इडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज जो है, जब व्हेन इट अकर्स इन अ फीमेल, इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. Next one is Jamie Tyrone, who is the elder son of Mary Tyrone and Mr. Tyrone. He is also muscular like his father, means he is also good looking, but good for nothing. There is nothing good in his personality. He also likes drinking and wars, and he is also suffering from Oedipus complex like his father, and his personality is also splitted, distorted, and he has also no link with his religion. Mean to say कि हम देखेंगे बेसिकली ये जो हमारा इनका जो लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फैमिली सिस्टम जो है वो दिखाया जा रहा है, कि स्प्लिटेड पर्सनैलिटीज़ है, कोई उनमें प्यार नहीं है, कोई उनमें अफेक्शन नहीं है. तो किस तरह वो लोग ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से जो है वो सफ़र कर रहे हैं. कैथोलिक हैं, ड्रंकर्स हैं, रिलीजन से उनका कोई रिलेशन नहीं है.
नेक्स्ट वन इज़ एडमंड टायरोन। और एज आई अर्लियर टोल्ड कि हमारी स्टोरी में जो है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, और जो हमारा राइटर है उसके फादर भी जो है वो भी स्टेज एक्टर थे, पेरेंट्स स्टेज एक्टर थे, एल्डर ब्रदर जो है वो भी अल्कोहलिक था, ड्रंकर था, एंड द राइटर पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज अ एडमंड हु वांट्स टू बिकम अ पोइट इन फ्यूचर. Edmund is 23 years old guy, and he is lean like his mother and suffering from tuberculosis. He also likes drinking and wars, and he also suffering from Oedipus complex, pathetic jobs and no link with religion. तो देखें इनकी पर्सनैलिटी भी जो है बहुत ज़्यादा स्प्लिटेड दिखाई गई है, कोई उनमें अफेक्शन नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ना बहन भाइयों से है, ना माँ बाप से है, पेरेंट्स से है। तो इस तरह जो है इनकी इस पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई गई है। Now guys, moving towards the next, and let's have a look on the summary and its analysis at what actually story is. The entire play takes place in the family room of the Tyrone's summer home. Full play जो है हमारा Tyrone's फैमिली के समर होम के एक रूम में जो है, लिविंग रूम में जो है वो टेक प्लेस करता है. एंड द ईयर इज़ 1912. द सेम वन इज़ द अगस्त मॉर्निंग है. मैरी एंड जेम्स जो है जस्ट दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, एंड इन द स्टार्ट वी केम टू नो दैट मैरी हैज़ रिसेंटली रिटर्नड फ्रॉम द ट्रीटमेंट एट अ सैनाटोरियम. स्टार्टिंग में जो है हमें पता चलता है कि जेम्स और मैरी जो है वो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, और उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि मैरी जो है वो अभी सैनाटोरियम से जो है वो वापस आई है ड्यू टू हर मॉर्फिन एडिक्शन. वहाँ पर जो है उसका ट्रीटमेंट हो रहा था. इन द वन एक्ट ओपनिंग वंस ओपनिंग वी आल्सो लर्न दैट एडमंड हैज़ बीन ट्रैवलिंग. हमें ये भी पता चलता है कि एडमंड जो है वो ट्रैवल कर रहा था, और वो रिसेंटली जो है उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. एंड ही हैज़ ऑल्सो डिवेलप्ड अ टेरेबल कफ. उसे बहुत बुरी खांसी भी हुई है. जेमी एंड एडमंड एंटर, एंड द जेम्स एंड टायरोन कांट सीम टू रेजिस्ट फाइटिंग. जेमी और जो मिस्टर टायरोन हैं वो आपस में लड़े बगैर जो है वो नहीं रह सकते. अ बिट ऑफ टीजिंग बिकम्स बिटर आर्ग्यूइंग, एंड बट एडमंड और मैरी जो है वो आके उन दोनों को चुप करा देते हैं. एडमंड जो है वो कोई स्टोरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर टायरोन जो है उसका ये स्टोरी बताना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और टायरोन को जो है वो एक सोशलिस्ट और एनार्चिस्ट जो है वो कहलाता है. उसके बाद जो है मिस्टर टायरोन जो हैं वो एडमंड को, सॉरी गाइस, टायरोन को जो है सोशलिस्ट और रमन मुखालिफ कहकर पुकारता है, लेकिन वो इस तनकीद से बेजार होकर ऊपर खांसता हुआ ऊपर वाली मंजिल पर जो है वो चला जाता है. कौन चला जाता है? एडमंड चला जाता है. मैरी टायरोन जो है वो परेशान तो है, मगर वो ये बात सुनने पर भी बिल्कुल एग्री नहीं है कि एडमंड जो है ही इज़ वेरी मच इल. मैरी जो है निगरानी के लिए बावर्ची खाने में चली जाती है, और उसके जाने के बाद जिमी और टायरोन जो हैं वो एडमंड के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद उसे टीबी का मर्ज़ लाहक हो गया है. मुख्तलिफ़ किस्म की बहस के दौरान जिमी और टायरोन एक दूसरे से खूब झगड़ते हैं, और इसी तरह हमें पता चलता है कि उनकी बातों पर उनका झगड़ा खेल के ख़त्म होने तक ही जारी रहता है. टायरोन जिमी को जो है वो बेराह रद्द होने का इल्ज़ाम देता है, जबकि जिमी इस बात पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो कंजूस है. कौन इल्ज़ाम लगाता है? अब बड़ा बेटा जो है वो अपने बाप के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है. यहाँ पर जो है हम इडिपस कॉम्प्लेक्स के स्टेज को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरह वो सेम जेंडर्स जो हैं वो आपस में लड़ाई कर रही हैं और रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को. जिमी जो है वो अपने बाप को कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, और इसी वजह से जिमी अपनी माँ की नशे की आदत को भी टायरोन के सौदेबाजियों में मसरूफ़ रहने और मैरी का नाकिस इलाज कराने का कसूरवार ठहराता है. वो कहता है कि आपने मतलब कंजूस हैं, और आपने मेरी माँ को भी एक बहुत नाकस जो है इलाज कराने के लिए एक बुरे से सैनिटोरियम में भेज दिया था. लेकिन जब मैरी वापस कमरे में आती है तो वो दोनों, जेमी और मिस्टर टायरोन जो है वो खामोश हो जाते हैं. वो दोनों भाई सहन में काम करने के लिए चले जाते हैं. एडमंड नीचे आता है और वो मैरी से बात करने की कोशिश करता है. वो दोनों एक दूसरे की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं. एडमंड वांट्स दैट ही इज़ गोइंग टू टेल द पास्ट ऑफ हिज मदर्स ट्रीटमेंट. तो वो जो है अपनी माँ के सामने उसके माजी में जो उसका इलाज हुआ है नशे की आदत के बारे में वो उसे खुलकर बताना चाहता है. लेकिन मैरी जो है शी इज़ नॉट एग्री टू लिसन एनी सिंगल वर्ड. वो जो है कोई भी बात सुनना नहीं चाहती. असल में वो ये नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई बात की जाए. वो टायरोन की कंजूसी की शिकायत भी करती है. अब जो है मिसिस टायरोन वो भी मिस्टर टायरोन की जो है वो कंजूसी की शिकायत कर रही हैं, और कहती हैं कि उनकी इस आदत के बाईस आज तक हमें अपना असल घर ना मिल सका. एडमंड जो है वो सहन
में जाकर साइड में लेट जाता है जहाँ पर जिमी और मिस्टर टायरॉन जो है वो काम कर रहे हैं, और जबकि मैरी कमरे में अकेली रह जाती है। इसके बाद जो है वो गाइस सेकंड एक्ट से स्टार्ट होता है। सेकंड एक्ट के पहले बंद में जो है वो दिखा रहे हैं कि दोपहर के खाने से कुछ देर पहले का टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एडमंड जो है वो कैथलीन से, वो जो मेड है उनके घर की, उससे बातें कर रहा है। जिम्मी जो है वो कमरे में आता है और चोरी चोरी शराब पीने की कोशिश करता है। मैरी सुबह से अपने कमरे में है और जिसके बारे में जिम्मी जो है वो ये सोच रहा है कि वहाँ जो है वो डेफिनेटली नशा कर रही होगी। एडमंड जो है वो ये बात सुनने पर राज़ी नहीं होता, लेकिन जब मैरी कमरे से वापस बाहर आती है तो उसकी ऐसी अजीब सी हालत देखकर एडमंड को वाकई यकीन हो जाता है कि वो जो कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। टायरॉन कमरे में आकर सूरत हाल का जायज़ा लेता है तो आखिरकार एडमंड भी यह एतराफ़ कर लेता है कि मैरी ने दोबारा से नशा करना शुरू कर दिया है। देन इन एक्ट 2 सीन 2 वी केम टू नो दैट के दोपहर के खाने के बाद शुरू होता है। मैरी टायरॉन पर जो है वो तनकीद करते हुए कहती है कि उसे रियल स्टेट जैसे बुरे काम में सरमायाकारी की आदत पड़ चुकी है, और इस दौरान टायरॉन को डॉक्टर हार्डी का फ़ोन आता है। जब वो उसका फ़ोन सुनकर वापस आने के अंदाज से फ़ोन सुनने के अंदाज से ये मालूम होता है कि फ़ोन पर उसे कोई अच्छी खबर जो है वो नहीं मिली। मैरी फिर ऊपर वाले रूम में चली जाती है नशा करने के लिए, और तीनों मर्द हर रात जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगेन द एडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज के सेम जेंडर्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। एडमंड जो है अपनी माँ से बात करने के लिए ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद टायरॉन जो है वो बताता है जेमी को कि एडमंड को जो है वो टीबी लग हो गया है। जिमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका कंजूस बाप कहीं उसको भी किसी सस्ते और घटिया सैनिटोरियम में ना भेज दे। वो अपने बाप से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ता है। जेमी बाहर जाकर एडमंड का इंतज़ार करना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों मिलकर शहर जा सकें। मैरी नीचे आती है और दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एडमंड से बड़ा भी उनका एक बेटा था जिसका नाम यूजीन था, और एडमंड नीचे आकर अपनी माँ से कहता है कि अपने नशे की आदत के साथ जंग करे, मगर वो ऐसा रवैया इख्तियार कर लेती है जैसे उसे पता ही ना हो। एडमंड क्या बात कर रहा है। एडमंड और टायरॉन मैरी को तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो है हम गाइस थीम ऑफ आइसोलेशन को भी डील कर सकते हैं। उनके जाने पर मैरी पहले तो कुछ सुकून में आती है, मगर जल्द ही वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लग जाती है। उसके बाद जो है खेल का, यानी कि हमारे प्ले का जो है वो थर्ड एक्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो उसी शाम 6:30 बजे के करीब शुरू होता है। मैरी जो है वो अपनी मेड कैथलीन के साथ कमरे में बैठी हुई है और अपनी जवानी और बचपन के दिनों को याद कर रही है। वो उसे बताती है कि मैं जो है स्टार्टिंग लाइफ में जो है वो एक नन बनना चाहती थी, एक राहिबा बनना चाहती थी, एक पियानिस्ट बनना चाहती थी। वो टायरॉन से मुलाकात और अपने जो है वो लव डेज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा याद करती है। कैथलीन जो है वो उसकी ये बातें समझने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे जो है उसका जहन इस कदर इंटेलिजेंट नहीं है कि वो उन बातों को जो है वो परसीव कर सके। उसके बाद जो है मैरी की वजह से, क्योंकि उसे बार बार विस्की पीना पड़ी थी और ऊपर से वो नशे की हालत में भी चूरे, इसलिए भी जो है कैथलीन को कुछ खास समझ नहीं आ रही। एडमंड और टायरॉन जो है वो घर आते हैं। मैरी बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल करती है, लेकिन वो जल्दी ही जान जाते हैं कि मैरी ने जो है वो फिर से नशा किया हुआ है और वो अभी भी नशे की हालत में है। उसके बाद जो है मैरी एडमंड को कहती है कि जिमी उसे अपने जैसा एक नाकाम इंसान बनाना चाहता है। वो उनके बचपन के बारे में सोचती है और परेशान होती है कि टायरॉन ने उन्हें भी शराब का आदी बना दिया है। मैरी टायरॉन को अपनी पहली मुलाकात की रात का वक़्त याद दिलाती है और उन दोनों के दरमियान जो मोहब्बत वाले लम्हात हुए थे वो उसके बारे में भी उसे याद दिलाती है। मगर फ़ौरन बाद मैरी टायरॉन पर सख्त तनकीद की बौछार कर देती है और वह इंतहाई उदासी के साथ अपने ब्राइडल ड्रेस को याद करती है। उसे नहीं पता कि अब शादी का वो ड्रेस जो है वो कहाँ है। वो कहती है कि शायद सामान वाले कमरे में होगा। टायरॉन कुछ शराब लाने के लिए गोदाम में चला जाता है। एडमंड और मैरी जो है वो अकेले रह जाते हैं। एडमंड मैरी को बताने की कोशिश करता है कि वो किस कदर बीमार है। एडमंड जो है वो अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किस कदर बीमार है, लेकिन उसकी माँ जो है वो इसकी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर देती है, और वो दोनों मैरी की नशे की आदत के बारे में बात करते हैं। मैरी को माजी के बारे में अच्छा नहीं लगता कि वो माजी के बारे में कोई बात करे, इसलिए वो ये मौजू छोड़ देती है। एडमंड भाई चला जाता है। टायरॉन आकर
मैरी से कहता है कि वो रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, मगर उसके बाद जो है मैरी फिर ऊपर वाले रूम में चली जाती है, शायद वो दोबारा फिर से नशा करने वहाँ चली जाती है। फाइनल एक्ट आ जाता है, फोर्थ एक्ट जो है उसमें आधी रात के वक्त जो है वो शुरू होता है। एडमंड जो है वो लेट नाइट घर आता है। टायरोन और एडमंड के दरमियान एज़ यूजुअल जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है और शराब नोशी को लेके लड़ाई चलती है। बाद में दोनों के दरमियान बड़ी नरमी और प्यार वाली गुफ्तगू भी हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग पे जो है वो लड़ाई दिखाई गई है, क्योंकि अब हमारा नावल भी जो है वो फाइनल सीन में है, तो इस वजह से दिखाया जा रहा है कि वो जो है एडमंड जो है वो सबको माफ़ कर देता है और वो उनसे मोहब्बत करने लग जाता है। एडमंड अब अपने बाप से पहले से भी ज़्यादा बेहतर समझना शुरू कर दिया है उसने, और एडमंड अपने बाप को अपने दिन भर की मसरूफियात के बारे में भी बताता है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि दैट ही वांट्स टू बिकम अ गुड पोएट इन फ्यूचर। और शराब के नशे की लत में जिमी और एडमंड बातें करना शुरू कर देते हैं। जिमी एडमिट करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो एडमंड से करता है, मगर वो ये भी चाहता है कि एडमंड एक नाकाम इंसान रहे। अब कौन बात कर रहे हैं? दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, और वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें मैं सारी ज़िंदगी एक नाकाम इंसान देखूँ, और ये भी उसे ऐसा बनाने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि वो नशे की हालत में इसलिए ऐसी बातें करता है। जिमी जो है नशे की वजह से सो जाता है, और जब टायरोन आता है तो वो फिर से जाग जाता है, और हस्बे मामूल जो है वो इनमें लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मैरी नीचे वापस आती है, और इस कदर उसने नशा किया हुआ है कि वो उनको पहचान ही नहीं सकती, और वो अपना ब्राइडल ड्रेस उठाए हुए है और मुकम्मल तौर पर जो है वो पास्ट में खोई हुई है। तीनों बेटे जो हैं वो खौफजदा होकर मैरी को देखना शुरू कर देते हैं, जबकि वो उनकी मौजूदगी से बिल्कुल भी बेखबर हो जाती है। इसी के साथ जो है हमारा नावल एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉय द वीडियो। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली जो है ना, ये हमारे कैरेक्टर्स का यही दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह जो है आइसोलेशन को पसंद कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, तन्हाई पसंद है, हकीकत को कबूल करने से, सामना करने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। लास्ट पर जो है हम थीम्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी जो नावल है इसके अंदर किस तरह के थीम्स जो हैं हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द रीडर दैट हाउ ही इज़ गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द थीम्स। आई ऑल्सो हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द थीम्स विच आई हैव एक्सट्रैक्टेड। नंबर 1 इज़ देयर ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, मिजरलेसनेस, मिजरलाइनेस एंड फैमिली, सोशल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है। No one is attracted towards religion and the past as a refuge and burden। past को जब एज अ बर्डन के तौर पे ले रहे हैं, आइसोलेटेड हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, हाउ मच दे आर ड्रंकिंग, सफरिंग दिखाई जा रही है, गिल्ट एंड ब्लेम दिखाया जा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स की स्टेज वेरी प्रोमिनेंट, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एज वेल, एंड स्प्लिटेड पर्सनैलिटीज़ जो है वो दिखाई जा रही है कि किस तरह जो हमारे करेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड है। एंड one thing more guys, if you people are watching my video at first time and you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the button of bell icon so you may be able to get the notification of my coming videos. And thank you very much. How you like the video, tell me in your comment section, and thank you so much.